Hello students, today I am going to cover the topic of graph theory in the subject discrete structure and graph theory. So I am going to cover all the basic concepts of this chapter. Have a look. Let us first say what is a graph. Graph is a collection of vertices and edges, and each edge connects the two vertices, right? So here I have taken the example of four vertices and there are edges connected between them. Okay, so how can we denote this graph? Graph is equal to V comma E. What is V? Number of vertices. So here there are four vertices, 1, 2, 3, 4 and edges. So how we will write for edges? Now see there is an edge between 1 and 2, right? So we will write 1 comma 2 and we will also write 2 comma 1. Why? Because there is no direction given in this graph, right? So we can write both the way. Same way for here 2, 3. We can write 2 comma 3 and then we will also write 3 comma 2. So like this we can denote for all the edges. Okay. Now we can represent our graph in two ways in computer memory. One is adjacency matrix and another is adjacency list. What is adjacency matrix? In this method, we declare the two-dimensional array having V rows and V columns. Okay, and what are V? V are the nothing but number of vertices in the graph. And what is element I, j? So हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमारे पास देखो यही ग्राफ का मैंने एग्जांपल लिया है. यहाँ पे 4 वर्टाइसेस है. तो हमारा मैट्रिक्स बनेगा 4 रोज एंड 4 कॉलम्स का और उसमें वैल्यू कैसे स्पेसिफाई होगी. तो जहां पे भी एज प्रेजेंट है, जैसे 1 और 2 के बीच में एज प्रेजेंट है और क्योंकि यहाँ डायरेक्शन नहीं है तो 2,1 भी आएगा, राइट? तो वहां वैल्यू 1 आएगा और बाकी इसमें 0 आएगा. तो वी कैन सी 1,1 इज 0, 1, 2 is 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1 like that. Okay. What is adjacency list? In this method, we store the adjacent nodes in the form of linked list. So यहाँ पे देखो 4 नोड है, right? So हम यहाँ पे अभी linked list के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. So 1 किस किस से कनेक्टेड है? देखिए यहाँ पे 1 2 से कनेक्टेड है, 1 3 से कनेक्टेड है, 1 4 से कनेक्टेड है, right? 2 किस से कनेक्टेड है? 1 से और 3 से. So we can see here 1 is connected to 2, 3, 4. 2 is connected to 1. The same concept we can learn in data structure subject also. So here I have covered just the basics. Okay. So we can represent our graph in computer memory in two ways. One is matrix, another is list. Now we will see types of a graph. Okay. So what is our first graph? Undirected graph. नाम से ही समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स. डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड का मतलब है ये ग्राफ में कोई डायरेक्शंस नहीं है. This graph doesn't have any directions. So हमने ये जो अभी एग्जांपल मैंने आपको बताया, सेम एग्जांपल आई हैव टेकन हियर. So यहाँ पे हम ये ग्राफ को मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट दोनों में ही रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये सेम एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया, राइट? सेम एग्जांपल इज रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट. सो एलिमेंट आई जे इज माय वर्टाइसेस. वो 1 तभी होगा जब भी एज प्रेजेंट होगा दोनों वर्टाइसेस के बीच में और नहीं तो उसका वैल्यू 0. We can see this. What is next graph? Directed graph. This graph have directions. Okay, यहाँ पे देखो ध्यान से हमने ये directed line draw किया है, शायद थोड़ा visible less है, but these are directed graph. Element I, j is set to 1 if directed edge is present between two vertices. देखियो अभी यहाँ पे जो directions है ना वो 1 से 2 तक है, ठीक है? सो 2 से 1 तक नहीं है. सो हमारा वैल्यू देखो यहाँ मैट्रिक्स में 1 से 2 1 होगा, बट 2 से 1 1 नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन वहां प्रेजेंट नहीं है. 1 से 3 भी 1 होगा बट 1 से 4 नहीं है. सो 1 से 3 1 होगा, 1 से 4 0 होगा. वी कैन सी 3 से देखिए आप कहाँ से वैल्यू है, 3 से 4 डायरेक्शन अवेलेबल है, बाकी कहीं पे भी नहीं अवेलेबल है. सो 3 से 4 1 होगा एंड 4 से ओनली 1. सो 1 4 से 1 1, right? And we can show in adjacency list also कि 1 से कहाँ पे डायरेक्शन है, 2 तक है और 3 पे है. So 1 से 2, 2 to 1 से 3, then 2 to only 3, so 2 to only 3, 3 to only 4, 4, 4 to only 1, 1. Okay, let us see next undirected weighted graph. What is this? This is very similar to undirected graph. The only thing is that पहले हमारे एज पे कोई वेट नहीं था तो हम उसको 1 वैल्यू लेते थे यहाँ पे मैट्रिक्स में और लिस्ट में, बट अब यहाँ पे वेट भी अवेलेबल होगा.
ओके सो अभी ये एग्जांपल लिया है मैंने. सो यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ है और उसपे वेट्स अवेलेबल है. तो सिर्फ क्या फर्क होगा इसमें, मैट्रिक्स में जहां हम 1 वैल्यू लिखते थे वहां पे वैल्यू ये वेट आ जाएगा. तो वी कैन सी 1 इज कनेक्टेड टू 2 3 4 और वैल्यू उसका जो 1 से 2 का वैल्यू है 2, 1 से 3 का वैल्यू है 4, 1 से 4 का वैल्यू है 3, राइट. देन 2 to 1, 2 to 1 2, right, 2 to 2 0, 2 to 3 1 और दिस इज अनडायरेक्टेड. सो बाई डायरेक्शनल आएगा, 1 से 2 भी 2 आएगा और 2 से 1 भी 2 आएगा. वी कैन सी दिस. एंड यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें वर्टाइसेस का नंबर भी लिखना है और साथ में उसका वेट भी लिखना है. वी कैन सी 1 इज कनेक्टेड टू 2 और उसका वेट 2 है. सो 1 इज कनेक्टेड टू 2 और उसका वेट 2 है. वी कैन सी 1 इज कनेक्टेड टू 3, वेट 4 है. 1 इज कनेक्टेड टू 3, वेट 4 है. 1 इज कनेक्टेड टू 4, वेट 3. सेम वे, राइट. दिस इज अगेन डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ. यहाँ पे डायरेक्शंस भी होगा और वेट भी होगा, राइट. सो डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ में जहाँ डायरेक्शंस अवेलेबल है सिर्फ वही कनेक्शंस आएंगे और वहां पे वेट में वैल्यू आ जाएगा. सो 1 इज कनेक्टेड टू 2, 1 इज कनेक्टेड टू 3 5 एंड 1 उसका वेट है. 1 इज कनेक्टेड टू 2, 5 is weight, 1 is connected to 3, 2 is weight. So this graph have directions also and weight also. ठीक है. So instead of only one we will just specify the weight. That's the only difference. So there are 4 types which we have seen of the graph: undirected graph, directed graph, undirected weighted graph and directed weighted graph. Okay, let us see the next slide. See, this is the general information now I have given. Graphs are usually represented by pictures using a point for each vertex and a line for each edge. जो अभी हमने देखा वहां पे मैंने ना वर्टेक्सेस को सर्कल की तरह ड्रॉ किया है वो आपको समझाने के लिए. बट जनरली व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ सो वर्टेक्सेस को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एजेस आर लाइन. ग्राफ्स आर ऑफन यूज्ड टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशनशिप्स ऑफ कनेक्शंस. जहां पे भी कनेक्शंस होते हैं उसके रिलेशनशिप्स को वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है. वर्टेक्स जो हम अभी बात कर रहे हैं वर्टेक्स उसके अलग अलग नाम भी है. वर्टेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोड और अ जंक्शन और अ पॉइंट एंड edges are also called as line, element or an arc. What is degree now? What do you mean by degree? So degree of vertex, when we say you give me a degree of any vertex, it means वो vertex में कितने incoming edges है. So definitely incoming edges मतलब वो ग्राफ डायरेक्टेड ही होना चाहिए कंपलसरी, क्योंकि अदरवाइज हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे डिग्री. क्योंकि इनकमिंग एजेस हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये एरोज हो, तो वो उसकी डिग्री हो जाती है, राइट. और लूप क्या होता है? सो ग्राफ में कंटेन एन एज फ्रॉम वर्टेक्स टू इटसेल्फ. मतलब अगर 1 इज माय वर्टेक्स और 1 खुद के साथ ही कनेक्टेड है सो दैट इज कंसीडर्ड एज अ लूप. तो फिर उसकी डिग्री 2 हो जाएगी, राइट, सिंस द वर्टेक्स सर्व एज बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ द लूप. क्योंकि उसके पास दोनों एंड पॉइंट्स वो खुद ही है, सो इट इज कंसीडर्ड एज 2 डिग्री. व्हाट इज आइसोलेटेड वर्टेक्स? जिस वर्टेक्स की डिग्री 0 हो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स. मतलब वो वर्टेक्स के पास एक भी इनकमिंग एज नहीं है, सो उसको आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं. व्हाट इज पाथ? पाथ इज एन graph in a sequence of vertices each adjacent to the next and choice of an edge between each vi and vj so that no edge is chosen more than one. मतलब अगर मुझे एक जगह से सोर्स से एक डेस्टिनेशन पर जाना है, if I can say if I have 5 vertices in the graph और मुझे 1 से 5 तक जाना है तो मुझे ऐसा पाथ चूज करना है जहां पे हम कितने एजेस के थ्रू पास हो रहे हैं बट एक भी डायरेक्शन रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट. सो उसी को बोलते हैं पाथ. ठीक है. एंड पाथ इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल पाथ इफ नो वर्टेक्स अपीयर मोर देन वंस एंड नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पाथ. अगर हमने वर्टाइसेस भी रिपीट नहीं किए, देखो पाथ में एजेस तो डेफिनेटली रिपीट नहीं होंगे क्योंकि हम एक ही पाथ के थ्रू जाएंगे, उसमें वो पाथ को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. बट अगर वर्टेक्स भी रिपीट नहीं हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे सिंपल पाथ और जितने भी एजेस हमने वो पाथ में कंसीडर किए हैं दैट नंबर ऑफ एजेस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ पाथ. व्हाट इज सर्किट? A circuit is a path that begins and ends with the same vertex and a circuit is simple if vertices visited are all distinct. अगर सर्किट जो है वो हमारा सेम वर्टेक्स से हमने स्टार्ट किया है और वहीं पे आके वो एंड हो रहा है तो वो सर्किट बोलते हैं हम. और उसको सिंपल तभी कहते हैं जब हम सारे वर्टाइसेस डिस्टिंक्ट, मतलब यहाँ पे भी हम वर्टाइसेस को रिपीट नहीं कर रहे. ओके. सो सपोज मैंने 1 से स्टार्ट किया और मुझे 5 तक जाना और मैंने एंड भी 1 पे ही आके किया, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सर्किट. ओके. सो वी कैन सी हियर यूलर सर्किट.
graph contains Euler circuit if we are able to draw all the edges of a graph exactly once without lifting a pen such that initial and final vertex are same. हम ग्राफ को यूलर सर्किट तभी बोल सकते हैं अगर हमने वो सारे ग्राफ के एजेस को एग्जैक्टली एक ही बार ट्रैवर्स किया है, मतलब एक ही बार ड्रॉ किया है और हमने उस पेन उठाया भी नहीं है और हमारा स्टार्ट जहां से किया था हमने वहीं पे आके एंड किया. हम बचपन में गेम खेलते थे स्टूडेंट्स, यू रिमेम्बर कि ये डायग्राम ड्रॉ करके बताओ पेन उठाए बिना, राइट? सो दैट इज द सेम थिंग हियर. ग्राफ कंटेन्स यूलर सर्किट इफ वी आर एबल टू ड्रॉ all the edges of the graph exactly once without lifting a pen, मतलब पेन हमें उठाना नहीं है, and we can say जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आके एंड करना है. सो इनिशियल एंड फाइनल वर्टेक्स आर सेम. तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक थ्योरम भी है. We can say graph is Euler circuit if and only if all the vertices of graph have even degree. हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं वो ग्राफ जो हमने एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं हमें फाइंड आउट करना है वेदर इट इज यूलर सर्किट और नॉट. वी कैन फाइंड इट आउट हाउ. अगर हमारे ग्राफ में सारे वर्टिसेस का डिग्री इवन है सो वी कैन से दैट दैट ग्राफ इज अ यूलर सर्किट ग्राफ. यू कैन सी दिस डायग्राम. यहाँ पे देखो कितने वर्टिसेस है 1 2 3 4. मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है डॉट, बट यू कैन सी 1 2 3 4 और सारे वर्टिसेस की डिग्री कितनी है 2. बिकॉज यहाँ पे भी 2 एजेस है, यहाँ 2 एजेस है, यहाँ 2 है. यहाँ पे इनकमिंग वगैरह नहीं है, डायरेक्टली अनडायरेक्टेड है, दैट इज फाइन. और हम ये बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन ड्रॉ लाइक दिस डायरेक्टली. वी आर नॉट इवन रिपीटिंग द एजेस एंड वेयर वी आर स्टार्टिंग देयर ओनली वी आर एंडिंग आल्सो. व्हाट इज यूलर्स पाथ? Graph has Euler's path if we are able to draw all the edges of the graph exactly once without lifting a pen such that initial and final vertex are not the same. See now what is the difference between these two? ये दोनों का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है बट ये सर्किट है और ये पाथ है. तो बस मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया पाथ और सर्किट में डिफरेंस क्या है. दोनों में हमें एजेस रिपीट नहीं करना है बट पाथ में क्या होता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन अलग अलग वर्टाइसेस होते हैं जबकि सर्किट में जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे हम एंड करते हैं, राइट? तो सर्किट में वी कैन से इनिशियल एंड फाइनल वर्टेक्स आर सेम whereas in path we can say initial and final vertex are not same. Okay, so इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? graph is Euler's path if and only if exactly 2 vertices have odd degree and the path must begin from one of the odd vertex and end at another odd vertex. मतलब ये देखो ये डायग्राम है, ये मैंने ड्रॉ किया है. we can draw this diagram without lifting a pen. सपोज ये वर्टेक्स से मैंने स्टार्ट किया 1 ऐसे ड्रॉ करेंगे this line, then this line and then finish here. ठीक है? So suppose this is my 1 2 3 4. So I'm starting with 1, I'm ending with 4. So this is satisfying my definition कि my initial and final vertex are not same. Plus हमने एक भी एजेस को रिपीट नहीं किया है. But we can say 1 की डिग्री जो है वो 3 है. Why? Because 3 एजेस है यहाँ पे. 2 की डिग्री 2 है, 3 की डिग्री 3 है and 4 की डिग्री 2 है. So we can say यहाँ पे 2 वर्टाइसेस है जिसकी डिग्री 3 है, मतलब ऑड डिग्री है 1 और 3 की. So हमने स्टार्ट 1 से किया और एंड 3 पे किया. So start with one of the odd degree vertex and end with another odd degree vertex. This is a method to find out the Euler circuit and Euler's path. Okay. Next is Hamilton circuit and Hamilton's path. What is Hamilton circuit? Graph contains a Hamilton circuit if we can visit all the vertices of a graph exactly once without lifting a pen such that initial and final vertex are same. अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे यूलर सर्किट एंड यूलर्स पाथ एजेस पे फोकस कर रहा था. देखो ड्रॉ ऑल द एजेस, मतलब हमारे ग्राफ में सारी एजेस एक ही बार ड्रॉ होनी चाहिए, राइट? और हैमिल्टन जो है वो वर्टाइसेस पे फोकस कर रहा है. Okay, so graph contains Hamilton's circuit if we can visit all the vertices of a graph exactly once without lifting a pen such that initial and final vertex are same. So हमें सारे vertices को एक बार visit करना है और starting और end vertex same होना चाहिए. This is Hamilton circuit. यहाँ पे हम edges पे focus नहीं कर रहे. हमारा aim ये है कि हमारे सारे vertices visit होने चाहिए. Edges अगर सारे draw नहीं होंगे तो चलेगा. What is Hamilton's path now again? Graph is Hamilton's path if we can visit all the vertices of a graph exactly once without lifting a pen such that initial and final vertex are not the same.
यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल वर्टेक्स सेम है, यहाँ पे सेम नहीं है। वी कैन सी द एग्जाम्पल 1 2 3 4। यहाँ पे भी हम सारे वर्टेक्सेस पर यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ एंड करेंगे, यहाँ पे यहीं पे स्टार्ट करेंगे और यहीं पे एंड करेंगे। Okay students, so I will cover other topic in next video. Thank you.